Welcome everyone. Good morning. Today is, I believe, fifth session or sixth session. Sixth session most probably, and we are doing divisibility. All right, let's start with the remaining question. From yesterday's class, is there any doubt from question or any concept, anything which you did not get? If you want to, do anything, just let me know. Any small to smallest confusion you have, just let me know. All right. The first question, I guess, the first question that we kept, uh, what we decided that the the division method is irrespective of applying the divisibility rule of seven. The simple division method is much more effective. So ये कल आप लोगों ने मे भी किया हो. ओके नहीं है तो आज हम लोग इसको एक बार कर लेते हैं. ओके. Instead of applying the divisibility rule of 7, what we can do is we can straight away go for the division method and we will get our answer maybe very quickly. So this is 7 dividing 3, 7, 9, 8. Wait, I'll check the chat once. No, fine. 3, 7, 9, 8, 1, 2, 5, P, 3, 6, 9. All right. So this brings us to, if I take 5, this is 35, remainder 2, 9, 7, 4s are 28, remainder 1, 8, 7, 2s are 14, remainder 4, 1, 7, I guess again 5, 7 5s are 35, that would bring remainder as 6, 2, 7 9s are 63. We need to divide 62. That is 7 8s are 56, which will bring remainder as 6 again. And then we have 5, 7 9s are 63, 63, 63. That is remainder 2. And then comes P. Okay. So we don't know what P is. What we can straight away do is we can put the value of P as 1. Let's consider option 1. So from here, just for the sake of it, instead of 2p, let me take 2, 1. That is 21. All right. So 21 would be 7 3s are 21. I believe 7 3s are 21 with no remainder. So we are left with 3. We cannot divide 3. We will add 1 0. We are left with 6 will come down. Then we will have 5, 7 5s are 30, sorry, 35, remainder 1 and 9. 19 we know it is not divisible by 7. So this entire number is not divisible by 7 when we kept P as 1. All right. Let's do quickly. Let's keep P as 6. Let's keep P as 6. Option 2. If we keep P as 6, if we keep P as 6, it becomes 26, which is again 3 times is 21. 21. I think the difference is 5. 3 would come down. 53. 7 sevens are 49, I guess. 7 sevens are 49, which gives us 4. 6 would come down. 7 eights are, oh no, 7 eights are 56. 7 sevens are 49. Again, not possible.
So we will go to 7 6 are 42. 42. Then 4 is the remainder and 9 would come down, and we can clearly divide 49 with 7 7s are 49. Okay. थोड़ा सा लंबा हुआ प्रोसेस, बट आप विजिलेंट रहोगे, थोड़ा सा अच्छे से रफ वर्क कर लोगे, तो आई थिंक विद इन अ मिनट यू विल गेट योर आंसर. ओके. सो डिविजिबिलिटी का ये मतलब नहीं होता है कि हमेशा रूल्स फॉलो करना है, और ये इसमें आप रूल लगाने जाओगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उससे आंसर नहीं आएगा, बट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. अगर आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा सा कल गूगल करके, इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. अब एग्जाम में याद रहे ना रहे, क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी रूल फिर 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल भी सिमिलर है, तो कभी कभी आप उसमें भी गड़बड़ कर सकते हो, स्पेशली 7 एंड 13 में. ओके. तो इससे मतलब लॉजिक तो समझ में आया क्वेश्चन का. थोड़ा सा हमने किया डिवाइड, ठीक है, मैं मानता हूँ डिवाइड किया. और सी सेट के क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल जैसे नहीं है कि आपको हर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक अप्लाई हो जाएगा. कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने भी पड़ सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको टाइम टेकिंग होते हैं. ओके. दैट इज व्हाई दे गिव 80 क्वेश्चंस फॉर 2 आवर. सो दैट मीन्स समथिंग, राइट? सो आई थिंक वी कैन गो फॉरवर्ड. एनीथिंग यू हैव? यस. ओके, कूल. चलो देन. सो दिस इज, आई थिंक आप लोगों ने भी बनाया होगा, मैंने भी एक बार बना दिया. कॉन्सेप्ट्स हमने सारे देखे थे, कुछ खास उसमें था नहीं. और फिर हमने ये एक मेथड कल रिवाइज किया था, दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर आर लाइक बुलेट्स इन द रिवॉल्वर, बुलेट्स इन द गन. ओके. और वो बुलेट एक बड़े मॉन्स्टर को मारने में काम आने चाहिए. ऑल द बुलेट्स मस्ट बी यूटिलाइज्ड. ओके. दिस इज अ वेरी गुड लिटमस टेस्ट, एंड दिस कम्स फ्रॉम the divisibility rule of 6. Okay. Because 6 k prime factorization is 2 and 3. So if 2 is dividing any number and 3 is dividing any number, definitely 6 will be dividing that number. Okay. And this applies to all the numbers in the, you can say, in the world. All right. So this is the question from the same concept. Again, this is a good what the exercise where we found the factors. Okay. तो ये भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, बट चलो, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन से कभी कभी रहेंगे कैलकुलेशंस. ऑल राइट. दिस क्वेश्चन अगेन, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 को किया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चुपचाप करो. 1068 नहीं आएगा, 1072 नहीं आएगा, 1078 आ गया. ठीक है. थोड़ा सा टाइम भले वेस्ट होगा, बट आ जाएगा आंसर. ठीक है. कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लगाने से ज्यादा है, कॉन्सेप्ट लगाने ज्यादा अच्छा है कि ऐसे ही कर लो, डिवाइड करके देख लो. ऑल राइट. चलो. सो नाउ लेट्स डू दिस. आगे कुछ किया था नहीं किया था, ठीक है. ऑल राइट. Since you are in library, I guess, so I think I'll just read the question. So the question says, if n is a natural number, then what is the number of distinct remainders of 1 power n plus 2 power n when divided by 4? Okay. अब मैं सच बताऊं तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, कोई दिमाग ही इसमें नहीं लगाना है. ओके. आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन इज सेइंग इफ n इज अ नेचुरल नंबर. n एक नेचुरल नंबर है, हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ओके. 1 2 3 4 को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं. व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स? कौन से अलग अलग रिमाइंडर्स आएंगे? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स ऑफ 1 power n plus 2 power n when divided by 4. Okay. 1 पावर n प्लस 2 पावर n डिवाइडेड बाई 4. इसके कितने डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स रहेंगे? कितने डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स आ सकते हैं? ओके. कुछ नहीं है. सबसे पहले नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 0 से तो स्टार्ट होता नहीं है, तो n को 1 ले लेते हैं. व्हाट इज n इक्वल टू 1? 1 पावर 1 प्लस 2 पावर 1 डिवाइडेड बाई 4. 1 पावर 1 is 1, 2 power 1 is 2 divided by 4, and 3 divided by 4 will give remainder 3. ओके. क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं तो 3 आएगा. कोई बात नहीं, n इक्वल्स टू 2 कर लेते हैं. 1 पावर 2 प्लस 2 पावर 2 डिवाइडेड बाई 4.
1 square is 1, 2 square is 4, divided by 4. We can see 5 upon 4, remainder would be 1. Okay, clearly we can see 5 is getting divided by 4, remainder is 1. n equals to 3 कर लेते हैं, 1 power 3 plus 2 power 3 divided by 4. 1 power 3 is 1, मतलब any power of 1 would be 1. 2 power 3 is 8 divided by 4. 8 plus 1 9 upon 4. इसको आप डिवाइड करोगे, 4 टू सा 8 होता है, 1 आया रिमाइंडर। तो आप देख रहे हो जब डिवाइड नहीं हो रहा था तब तो 3 था, लेकिन जब डिवाइड हो रहा है तो हमेशा 1 आ रहा है। अगर अभी भी डाउट है तो कोई बात नहीं, एक बार n इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पावर 4 प्लस 2 पावर 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 पावर 4 विल बी 1 and 2 power 4 will be divisible by 4. 2 power 4 is 16 upon 4. 4 4s are 16, divisible, remainder 1. This is 17 upon 4, remainder 1. तो आई थिंक यू आर सीइंग द पैटर्न। n की कोई भी वैल्यू डाल दो, रिमाइंडर वुड बी 1। हाँ, n इज इक्वल टू 1 एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहा था जो 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहा था, उसकी वैल्यू 3 थी। सो वी हैव टू डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स, 1 is 3 and for all other values 2 and greater than 2 it is 1. So two distinct remainders, 3 and 1, two distinct remainders. Okay, I think there is no issue. Again, आप क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगाओगे, क्या फॉर्मूला इसमें लगाओगे? आप सिंपल वैल्यू पुट करो, देख लो। ओके, बहुत बहुत नहीं विश्वास हो रहा है तो एक बार n इक्वल टू 5 भी कर लेना। ऑल राइट, आई थिंक दैट मेक्स सेंस। यस यस, ओके, चलो देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How many three digit natural numbers, how many three digit natural numbers without repetition of digit? पहले लिख दिया without repetition of digit, that means थ्री डिजिट के नंबर्स हैं और रिपीट नहीं हो रहे, तीनों अलग अलग नंबर्स हैं। आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ईच डिजिट इज ऑड, सारे डिजिट ऑड है, ठीक है, एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो ये भी अगेन ट्रिक क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, बट ये रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है। ओके, दिस इज व्हाट सीसेट डज। है ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, आई गेट इट, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, ओके, बट है ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन। ओके, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एनालाइज। डिविजिबल बाय 5 बताओ आप क्या अप्रोच करोगे? आपके माइंड में ये चीज है कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 है तो यूनिट डिजिट में उसका या तो 5 होगा या तो 0 होगा। आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर। यूनिट डिजिट में या तो 5 होगा या तो 0 होगा। दिस यूनिट डिजिट, दिस विल आइदर बी 5 और 0। इसमें तो कोई दोष ही, मतलब इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं। आई बिलीव 5 या 0, गुड। सो 5, ओके, जस्ट वेट। हाँ, 5 एंड 0, ऑल राइट। नाउ we have three numbers, we have three digits, sorry, we have three digits। एक में तो हम फिक्स हैं, या तो 5 होगा या तो 0 होगा। ओके, अब रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आर ऑड। ओके, रेस्ट ऑफ द डिजिट्स को ऑड होना है। कितने ऑड डिजिट्स होते हैं? 1 होते हैं, होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। ओके, ये 5 और डिजिट्स हो सकते हैं। हाँ, रिपीट नहीं हो सकता है, तो अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 नहीं आ सकता है। ऑल राइट, एंड सिमिलरली फिर यहाँ पे भी वही सीन हमें देखना होगा। ओके, यहाँ पे भी ऑड डिजिट्स ही आएंगे, ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो नंबर इज डिविजिबल का ख्याल तो रख लेगा 5 0। बाकी हमें इंश्योर करना है कि टेंस प्लेस पे और हंड्रेड्स प्लेस पे और डिजिट्स आए, ठीक है। तो यहाँ दो केसेस बनेंगे, इफ यू लुक एट इट करेक्टली। यहाँ पे दो केस बनेगा, एक बनेगा 0 के साथ और एक बनेगा 5 के साथ। ऑल राइट, और जितने केसेस बनते हैं वो केसेस लास्ट में ऐड होंगे। ऑल राइट, तो आई थिंक आप करो, आप अपने रफ में करो, मुझे बताओ आंसर। मैं करता हूँ, स्लोली मैं करूंगा, आप करो अपने रफ रफ पेज, जो भी रफ पेज, रफ कॉपी में।
अब एक चीज जो यहाँ पे जाननी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, जीरो को, ठीक है, जीरो को हम लोग ना इवन में ही मानते हैं हमेशा। ओके, द सेंस हियर इज जीरो इज ऑलवेज अ इवन नंबर। ओके, इट मतलब जैसे इवन नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि इट शुड बी डिविजिबल बाय टू। ओके, सो व्हाट वी कैन डू हियर इज टू विथ जीरो डिवाइड जीरो, मतलब आप बस ध्यान में रखो, ओके, कि जीरो इज ऑलवेज अ इवन नंबर। ऑल राइट, सो व्हाट दैट वुड डू इज जीरो की पॉसिबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, because the question says each digit is odd, so it will always be 5 here. Okay, zero will not come here. So इससे तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है। ऑल राइट, आई गेस इफ 5 is coming here, only there are 5 digits, there are 5 odd digits, जिसमें से एक 5 आ गया खुद ही, बचे 4। there can be only 4 digits here, and when one of the 4 digits are utilized, there can be only 3 digits here। okay, और ऐसे केसेस में this is not, this is 5, this is 1 digit। okay, so this would get multiplied। okay, like all the different cases, or not cases, all the different possibilities get multiplied with each other। all right, so I believe that this is 3 times 4 times 1, which is 12। Please let me know if this has any issue, this question has any issue. Wait, please repeat it once again, this Yeah, question. yeah, sure, I will do. First of all, any there are three things mentioned. First of all, the number is 3 digit. That is the first thing. Okay. The second thing is the all the digits are odd. All the digits are odd. And the third thing is the number is divisible by 5. The number is divisible by 5. I think that is Yes, pretty much clear. All right. Now, yes, now yes. what we will do is the number is divisible by 5, which makes us think that the last digit, the final digit, will either be 5 or 0। 5 or 0. हाँ, Okay. यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, दैट जीरो इज एन इवन नंबर। Even number. हाँ, Okay. उसको इवन ही कंसीडर करते हैं। ऑल राइट, हम्म, सो यहाँ पे 5 ही आएगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी टोटल गॉन। ओके, नाउ यू टेल मी, हम्म, देर आर थ्री there are three options: breakfast, lunch, and dinner। okay, breakfast में हम्म, there are two options, let's say puri or let's say chole bhature। okay, yes, lunch में there are three options, maybe rajma rice, chole yes. rice, or something like or you can say, let's say, some western pizza। okay, हम्म, and in dinner there are again three options, maybe you can say pasta, you can say simple roti sabzi, or you can say something around what, let's say noodles, okay, Chinese। all right, so these are options. Now can you tell me how many types of permutations are possible? Permutation as in how many ways we can eat food. One day we can have puri as breakfast, chole rice as this thing, uh, afternoon lunch thing, and pasta as dinner. Another day we can have puri and chole rice, and at the end and the dinner we can have noodles. Okay. Another day we can have these two same, and we can have roti sabzi as dinner. Okay. We can change. We can have chole bhature in the beginning, uh, breakfast, lunch, pizza as lunch, and then again pasta as or noodles as dinner. So whenever there are multiple options, what we do, we multiply। okay, we multiply the options. There are two options for breakfast, three options for lunch, and three options for dinner. So overall, how many possibilities, how many ways, how many permutations, how many arrangements are possible? Okay, all these things, all these words, especially arrangements, because this is something you would find in question, we will see later. Arrangement and ways is something which you can concentrate। okay, so what is there? 3 times 3 is 9, times 2 is 18,
So there are 18 possibilities. If you do it in your mind, maybe puri, rajma, pasta, puri, rajma, roti, puri, rajma, noodles. Three possibilities. Puri, chole, pasta, puri, chole, roti, puri, chole, noodles. Again, three possibilities. Puri, pizza, pasta, puri, pizza, roti, puri, pizza, noodles. Again, three possibilities. Same, you can see nine possibilities. Same with chole bhature, you can repeat all the process. You will again get nine possibilities. So in rough work also you can do, you will see total 18 possibilities are there. Okay. So this is a conceptual thing that we need to understand. Now tell me, zero is even, ये वाला तो चला गया. Okay, this is gone. Only five can be here. How many odd digits are there? One is an odd digit, three is an odd digit, five is an Five. odd digit, seven and nine is an odd digit. But five will not come because already five came Very in good. one digit. Then in tens place, what will come? Either 1379. That means Yes. four options are there. Four possibilities. Yes. Four possibilities. And when out of five, five is used, and out of four, one is used, one of the numbers is used. How many numbers left? How many options left? Four. Tell me again. Repeat. Repeat it. Repeat it. Question. When five is used, okay, Yes. bache four. Out of this Yes. four, one is used. Okay, one option Yes. is used. How many options left now? Three. Three. Three for hundreds place. Yes. Yeah. So now this five is one. Okay. This five is one option. As an option, it is only one option. Okay. So what we did here, we multiplied all the possibilities. So what we will do here, we will multiply all the possibilities. All Yes. right. So all the Three into four into five. no, no. Five is a number fixed here. The option here is one. The option here is one. Okay. फाइव एक सिंगल नंबर है, वो तो कभी चेंज नहीं हो रहा है ना, तो ऑप्शन वन है. आपको मान लो ब्रेकफास्ट में एक ही ऑप्शन है पूरी, तो आप पूरी मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना, आप ऑप्शन वन मल्टीप्लाई करोगे कि एक ही ऑप्शन है Okay. पूरी. हाँ. सो वंस प्लेस में एक ही ऑप्शन है फाइव. फाइव 12. डिजिट. Okay. हाँ हाँ, फाइव इज अ डिजिट. सो दिस इज, ये सिली मिस्टेक होता है कभी कभी. अब मैं भी कर सकता था 3 into 4 into 5, नहीं फाइव नहीं होगा, वो वन ही है वहां पे, वो चेंज नहीं हो रहा है ऑप्शन. सो आई बिलीव नाउ इट इज क्लियर. थ्री फोर जार 12. Okay. हाँ. और वन मोर थिंग, थ्री टाइम्स फोर टाइम्स फाइव फाइव करते तो 60 आता. 60 नहीं है ऑप्शन में. सो दिस इज ऑल्सो अ हिंट कि आप जैसे सोच रहे थे, मे बी उसमें हल्की सी गलती हो रही है, हल्का सा गलती हो रही है. ऑल राइट देन. ओके. शैल वी मूव टू नेक्स्ट? Yes. All right, cool. Okay, this is the, I think this is the type we have done. We'll see it again. What is the Anything? smallest number? Tell me. Nothing. Nothing. All right. What is the smallest number greater than 1000? Smallest number, but greater than 1000. Even at the options, you can see all are greater than 1000. Okay. All are greater than 1000. That when divided by any one of the numbers, any one of the numbers 6, 9, 12, 15, 18, leaves the remainder 3. Remainder of 3 means if you divide it with any number, it will leave the remainder of 3. Are you getting my point? Yes. Yeah. So what do you think? What we should do here? I think we have seen this type of question. Yes. Okay. So what are you thinking? How should we proceed? We divide 100 by each number. एक ये तरीका है. 1000 divided by 6. And then see. 1000 divided by 9. Then see. हाँ, बट वी आर नॉट कंसर्न विथ थाउजेंड. वो तो थाउजेंड बस एक हिंट दिया हुआ है कि सारे नंबर्स होने चाहिए ग्रेटर देन थाउजेंड. Greater than 1000. हाँ हाँ. आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग इन नंबर को एक एक पकड़ पकड़ के डिवाइड करना शुरू कर दें, आंसर आ जाएगा हाँ. अपने आप?
हाँ देखो, आंसर तो इन चारों में से कोई एक है, इतना तो पता है हाँ हमें। ठीक है, हाँ। हम क्यों अपना दिमाग लगाए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले एक हम्म। को उठाते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, डिवाइड हो गया है मतलब आंसर नहीं है, रिमाइंडर 3 आ हम्म। गया मतलब आंसर है। आंसर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लेवर, थोड़ा सा टाइम भी बचा सकते हैं। कैसे टाइम बचा सकते हैं? सबसे पहली बात, सिक्स सिक्स का डिविजिबिलिटी में क्या था? सिक्स के डिविजिबिलिटी में था 2 एंड, लास्ट टू डिजिट। नहीं, लास्ट टू डिजिट आप हल्का सा मिस्टेक कर रहे हो। लास्ट टू डिजिट था 4 में, लास्ट 3 डिजिट था 8 में। डिजिट से तो हाँ, सिक्स में क्या था? सिक्स में था 2 और 3। ओके। ओके, सिक्स में टू एंड यस। थ्री था। ऑल राइट, तो यस। 2 और 3 था। अब यहाँ आप देख सकते हो, टू से तो कोई भी डिविजिबल नहीं है। ओके, हाँ। सब सबके एंड में 3 आ रहा है, सबके एंड में 3 आ रहा है, दैट मीन्स आप वो कर सकते हो, सबके रिमाइंडर 3 आने के चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आ जाएगा, आने के चांसेस हैं। ऑल राइट, नाउ आई सम थिंक ऑफ ऑल थ्री का डिविजिबिलिटी है ना? सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। तो सबको प्लस करके देख लें एक बार कि कौन थ्री से डिविजिबल है। करके देख लो क्या आ रहा है इसमें। 6 + 3 9 + 1, 12। 6 + 3 9 + 1, सॉरी, 10। 10। 7 + 3 10 + 1, 11। 8 + 3 12। 8 + 3 11 + 1। 12 हो गया ना टोटल? हाँ, टोटल 12 हो गया। एंड 8 + 3 अगेन 11 + 1 12 + 1 13। 13। ओके, तो यहाँ पे तो यस। आप देख रहे हो 12 हो गया, ये 3 से डिविजिबल है। यस। हाँ, 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, एंड अबाउट यस। 9 ऑल्सो वी कैन नॉट से, बिकॉज 9 का था सम ऑफ था ना, सम ऑफ द डिजिट्स था। तो सम ऑफ द यस। डिजिट 9 से भी नहीं हो रहे हैं। चलो तब कोई बात नहीं, यहाँ पे हल्का सा हमने चेक कर लिया, हम लोग को कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, यस। सो तो व्हाट वी सबको कैन डू। अलग अलग ही करना पड़ेगा। हाँ कर लो, कोई बात नहीं। अब इसको इसको भी थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस करो। आप बताओ मुझे, 1063, इसको 6 से आप डिवाइड करो, और थोड़ा सा माइंड में करो, रफ वर्क की जगह थोड़ा माइंड में करने की कोशिश करो। मैं भी कर रहा हूँ, देखो आप। सिक्स, सिक्स वन वन टाइम में जाएगा, 10 है तो। ये आ रहा है इसका। सिक्स से डिविजिबल मतलब सिक्स में रिमाइंडर थ्री आ रहा है। 6 में आ रहा है, आपने करके देख लिया। हाँ। हम्म। 9 से आ रहा है। देख रही हूँ। देख लो आप। 9 से नहीं आएगा, वो तो हमने देख लिया डिविजिबल। नहीं आ रहा है। हम्म। रिमाइंडर 3 आ रहा है कि नहीं? रिमाइंडर 3 आना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा है रिमाइंडर 3। आप यहाँ पे देखो, जो 6 में आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया सच, देखो फिर से। 6 वन टाइम से 6, बचा 4, 4 6 = 46, 7 6 = 42, तो बचा 4, 4 3 = 43, 7 6 = 42, रिमाइंडर 1 बचा। तो ये ए ऐसे ही कैंसिल हो गया था। आप अगर अच्छे से देखोगे, फिर से 6 से डिवाइड करके देख लो आप। रिमाइंडर 1066। रिमाइंडर 3 आ रहा है। आठ। एक सेकेंड। सिक्स हाँ, वन जा। सिक्स। फोर। 46। सिक्स सिक्स जा 46। आ तो रहा है थ्री। 46। अगर 7 6 = 42 होता है, 7 6 = 42 होता है। और फिर 4, फिर 3 आ जाएगा, फिर 7 6 = 42 होता है, रिमाइंडर 1। सॉरी, मेरे साथ ये ऑप्शन हो गया। मैं 36 की जगह 46 ले ली। सॉरी, इट वॉज माई। हाँ, कूल कूल, कोई बात नहीं। ये ठीक है, ये मिस्टेक्स होंगे तभी आप अच्छे से पॉलिश हो जाओगे फिर। और राइट, ये मिस्टेक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत है, कोई इशू है, होता है ये सब। 36 46। हाँ, तो ऑप्शन 1 तो गया भाई, ऐसे ही चला गया। यस। ऑप्शन यस। 2 देख लेते हैं, ऑप्शन 2 देख लेते हैं। 1073 डिवाइडेड बाई 6, आई थिंक 6 वन टाइम इज 6,
बचा 4, 4 7, 6 7 जार 42, तो 5 53, 53 इज 6 8 जा 48, तो 53 के लिए 5 रिमाइंडर बच रहा है। इफ यू लुक क्लोजली 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो 10, 5 बच रहा है। यस। हाँ 1073 भी कैंसिल हो गया। 1083 को देख लेते हैं। 6 1 जार 6, 4 48, 6 8 जार 48, ओके 6 8 जार 48, तो 48। 3 बचा, 3 रिमाइंडर यहाँ बच गए। चलो, यस। हाँ 1083 डिवाइडेड बाई 9 करके देख लो, 3 रिमाइंडर बच रहा है। यस। बच रहा है, चलो बच रहा ठीक। है। हम्म। एक बार फटाफट 12 से भी करके देख लो। 12 9 जा 9 108। 108। हाँ वेरी गुड, तो 3 बच रिमाइंडर रहा बच है। रहा है। 15 से भी करके देख लो। आई थिंक 15 6 जा और 90 होता है, तो 15 7 जा ले सकते हैं। 15 7 जा 105 हो जाएगा। 3 3, 15 2 जा 30, फिर से 3 बच रहा है। लास्ट 18 भी लेके देख लो। 1083, 18, आई गेस 6 6 टाइम से हो जाएगा। 8 6 जा 48, 4 6 1 जा 6, 4 10, 18 6 जा 1083। आई थिंक आंसर आ गया 1083। बस। यस। ओके, आपने करके देख लिया खुद भी। यस। हाँ, क्योंकि हो सकता है मैं भी गलती कर सकूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो वही चीज है, देखो अगर आप ऐसे शुरू करते, अगर आप 1183 से शुरू करते तो थोड़ा सा पहले आ जाता, लेकिन ये तो तुरंत तुरंत हाँ। कैंसिल हो गया, ये तो 6 से ही कैंसिल हो गया था एक एक बार। 6 सेकेंड। यस। हाँ हाँ। सो नॉट एन इशू, ऐसे ही आपको कर लेना है। यही मतलब मेन पर्पस है मेरे पूरे बैच का, कि इतना फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट जो आप दिमाग लगाओगे उतना तो आप जीएस पढ़ लो। ठीक है, जीएस को रिवाइज कर लो। ओके, थोड़ा सा अभी तो 753 है, चलो और अभी कर सकते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन। Consider, consider the first 100 natural numbers. How many of them are not divisible by any one of 2, 3, 5, 7, and 9? ओके, सो Yes. यहाँ पे हल्का सा मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन है। यू नीड टू कंसीडर फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ओके, Yes. तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज 1 to 100। Yes. अब वो 1 to 100 में आपको बताना है कि कौन कौन से डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 1 of 2 3 5 7 and 9 है। ओके, अब Yes. यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा, हाउ शुड आई टेल, हाँ मतलब फैक्चुअल ही है ये क्वेश्चन। ओके, जो आपको पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इट विल बी डिविजिबल बाय 9। ओके जी, Yes. क्वेश्चन में 3 और 9 दोनों दिया हुआ है। सो Yes. इफ मैं बस लिख दे रहा हूँ, नंबर इज divisible by 3, it surely is divisible by 9। okay, this is Yes. 3। ओके, सो सबसे Yes. पहले ये 9 को कंसीडर करने की जरूरत है नहीं कुछ खास। अब हमें कंसीडर Yes. करना 2 3 5 7। अब यहाँ पे जो दूसरा फैक्ट आता है, दूसरा वो फैक्ट क्या आता है, 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। ऑल राइट, इस पर भी हम लोग एक दिन डिस्कस Yes. करेंगे। ठीक है, कैसे प्राइम Yes. नंबर्स याद रखें, इस पे भी हम लोग छोटा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, और 1 जो है, नंबर 1, ओके, मतलब एनी वन नंबर नहीं, नंबर 1। ओके, जो पहला नेचुरल Yes. नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं नीदर प्राइम नीदर कंपोजिट। ओके, इसको ना प्राइम समझा जाता है और इसको कंपोजिट भी नहीं समझा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. हम्म,
सो वन एज अ नंबर इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, तो ये ना Yes. ही प्राइम है। तो 100 में से क्या हमें 25 प्राइम नंबर्स को, हमें पता है 25 प्राइम नंबर्स हैं। ऑल राइट। Yes. और देखो क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ 2 3 5 7। अब जब आप प्राइम नंबर देखोगे, प्राइम नंबर कोई नंबर बनता कैसे है? डेफिनेटली इट इज, E. सबसे पहले तो सारे इवन नंबर डिवाइड हो जाते हैं 2 से। Hmm. ओके, फिर जो बच गए वो 3 से, जो बच गए वो 5 से, वो 7 Five. से, इसी तरीके से धीरे धीरे प्राइम नंबर्स बनते हैं। ओके, Hmm. वन फैक्ट यू नो दैट देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। ओके, अब 25 prime numbers. हाँ हाँ, दिस इज अ फैक्ट, इसको आपको थोड़ा सा याद Yes. रखना। 25 प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, बिटवीन 1 and 100, प्राइम नंबर तो इन्फिनिट है। बिटवीन Hmm. 1 and 100 देर आर 25 प्राइम नंबर्स, इसको आपको थोड़ा याद रखना होगा, ये एक फैक्ट है, ठीक है। Yes. हाँ, इस कहीं 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 किसी किसी स्कूल के टेक्स्ट बुक में भी है, अगर बहुत लोगों को वहीं से भी याद रहता है ये चीज। Hmm. नंबर वन के साथ क्या है, नीदर प्राइम नीदर कंपोजिट। यहाँ पूछ रहा है नॉट डिविजिबल, डेफिनेटली वन इज नॉट डिविजिबल। वन का Hmm. कोई डिवाइडर है ही नहीं। Hmm. हाँ, तो वन प्लस देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। Hmm. अब उन 25 प्राइम नंबर्स में से चार तो क्वेश्चन में ही दे दिए हैं। 2, 3, 5, 7. 2 3 5 7, चार तो क्वेश्चन में ही दे दिए हैं। Hmm. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाई एनी ऑफ 2 3 5 7 एंड 9। 9 तो हमने रिजेक्ट कर दिया पहले ही, ठीक है। Hmm. 3 5 7 एंड 9। ऑल राइट। तो Hmm. 2 3 5 7 खुद प्राइम नंबर है, इन पर हम लोग जजमेंट दे नहीं सकते हैं। तो क्या Hmm. ऐसा कर लेंगे कि -4 कर दे फिर? चार Yes. क्वेश्चन में ही दे दिया। तो अब बताओ आप Hmm. मुझे, 25 + 1 26, -4 इज 22. 22। तो सो दिस इज वन वे, दिस इज वन मेथड ऑफ ऑफ डिटरमाइनिंग द आंसर। ओके, अनदर मेथड इज, थोड़ा सा आपको एनालिटिकल होना पड़ता। अगर ये फैक्ट नहीं पता था, ये तो मैंने फैक्ट चलो बता दिया याद रखने के लिए। अगर ये फैक्ट नहीं पता था तो थोड़ा सा एनालिटिकल होना पड़ता आपको, ठीक है। आपको सबसे पहले आप माइंड में रखते, ठीक है, वन तो होता ही आंसर में, टू है, थ्री है, फोर नहीं है, फाइव, इस तरीके से आपको थोड़ा सा माइंड मैप करना रहता है। फाइव है तो फाइव का कोई भी मल्टीपल नहीं होगा आंसर में। ओके, सिमिलरली 10 का भी कोई मल्टीपल नहीं होगा आंसर में। ऑल राइट, इवन नंबर्स होंगे ही नहीं, कोई भी इवन नंबर होगा ही नहीं। सो दैट वे थोड़ा सा आपको माइंड में अरेंज करना होता और फिर सोचना होता। बेसिकली क्वेश्चन इज आस्किंग प्राइम नंबर्स। एक बार 2 3 5 7 से सब डिवाइड होने लगे तो बच कौन रहा है, सिर्फ प्राइम नंबर ही बच रहे हैं। ऑल राइट, सो इसको हम लोग फाइव फाइव 5 और 10 क्यों नहीं आएगा? ओके, फाइव, ठीक है, हाँ, ठीक है। 10 को तो देखो 2 भी डिवाइड कर देगा, और जिसके यस। यूनिट डिजिट में 5 है उसको 5 डिवाइड कर देगा। ओके, हम्म। और हम्म। आपको 3 का टेबल चलेगा। ओके, जैसे 12 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 27 नहीं होगा। तो थोड़ा सा इससे भी एलिमिनेट हो जाएंगे नंबर। हल्का सा आपको वो रफ वर्क करना पड़ता तो आंसर आ जाता, लेकिन इसमें बहुत एरर होने के चांसेस है। ओके, जब आप इतना बड़ा कुछ रफ वर्क करोगे, एरर होने के चांसेस है। इसीलिए अज्यूम कर रहा है, यूपीएससी इज अज्यूमिंग दैट यू नो दिस फैक्ट। ये ऊपर के दो फैक्ट, ऊपर वाला तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किसी को भी पता होना चाहिए कि भाई जब तुम्हारा फैक्टर डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को तो मल्टीपल भी कर ही देगा उसको। ओके, दिस इज वन थिंग। एंड एंड यस, दिस फैक्ट 25 प्राइम नंबर वाली फैक्ट आपको पता होने चाहिए थे। तो क्वेश्चन में चार है, टोटल 25 होते हैं, और वन को हम लोग को इंक्लूड करना होगा क्योंकि वन किसी से डिवाइड नहीं होता है। आई थिंक वी आर फाइन विथ इट। कभी कभी होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, हमें मतलब पता होने चाहिए वो फैक्ट्स। ऑल राइट, दिस इज व्हाट यूपीएससी अज्यूम्स। आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव आई जस्ट चेक द चैट वंस।
एक बार आप चैट पे कंफर्म कर दो लिख के, shall we drop off or shall can we continue? This is 8 p.m. but we started a bit late, तो थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं, आई बिलीव. ऑल राइट. ओके, सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. 421. 420। हाँ हाँ, बोलो बोलो. मैं पढ़ रही थी क्वेश्चन। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो. 421 and 427 when divided by the same number leaves the same remainder 1. How many of the number can be used as divisor in order to get the same remainder 1? ऑल राइट, सो क्वेश्चन इज प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्वेश्चन बोल रहा है कि 421 एक नंबर है और 427 एक नंबर है, और इन दोनों को जब एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, लेट्स से एक एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों ने रिमाइंडर दिया जी 1। 1. ओके, तो आपको इतना तो अब समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन 421 और 427 का नहीं है, क्वेश्चन है 420 और 426 का. आप समझ रहे हो? कोई नंबर वन रिमाइंडर दे रहा है 421 को डिवाइड करके, दैट मीन्स वो 420 को डिवाइड कर रहा है, तभी ना एक नंबर एक बच गया. कोई नंबर 427 को डिवाइड करके एक रिमाइंडर दे रहा है, दैट मीन्स वो 426 को डिवाइड कर रहा है, तभी तो एक नंबर बचा. यहाँ पे कोई दिक्कत, इतने इतने समझने में कोई दिक्कत? अच्छा हाँ, क्योंकि कल आपने बताया था कि अगर डिवाइजर हम्म, रिमाइंडर से जैसा आप करके ऐसे, बताया था ना। आप मुझे यहाँ पे देखो, नंबर है 10, ठीक है. 10 हम्म। को 3 डिवाइड कर रहा है, 3 3 जार 9, रिमाइंडर छोड़ा 1. ओके, हम्म। तो 10 को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर दे दिया 1. तो अगर हम 10 माइनस 1 करें, क्या आ रहा है? 9. तो 9 को वो डिवाइड हम्म। कर रहा है, थ्री. हाँ 9 को थ्री हाँ, टाइम. 9 को डिवाइड कर दो। हाँ, हम्म। 9 को डिवाइड करे तभी ना रिमाइंडर आया 1. अगर हाँ। 11 रहता, अगर 3 को मैं बोलूँ 11 को डिवाइड करके दिखा, रिमाइंडर आ जाएगा हम्म। 2. क्यों आ रहा है रिमाइंडर 2? क्योंकि 9 को डिवाइड कर दे रहा है, तो 10 और 11 हम्म। दो नंबर बच गए. आप ये समझ पा रहे हो? हम्म। एग्जैक्टली, यू कैन टेक मोर एग्जांपल्स लाइक दिस. 17 बाई 4 करो. 17 डिवाइडेड बाई 4 करो. 4 फोर जार 16, 16 को तो यस। डिवाइड कर देगा 4, 1 आ हम्म। जाएगा रिमाइंडर. तो हम्म। व्हाट डज दिस रिमाइंडर सिग्निफाई? दैट डिवाइडेंड डिविडेंड माइनस रिमाइंडर will give you the exact सेम। divisible answer. ओके, हम्म। यही लॉजिक है. अब इसी लॉजिक को आप यहाँ अप्लाई करो, इसी लॉजिक को आप यहाँ अप्लाई करो. एक नंबर है, वो 421 को डिवाइड करके रिमाइंडर 1 दे दे रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ वो 420 को डिवाइड कर रहा है. यस यस। एग्जैक्टली. सो नाउ वी आर फोर। डाउन टू 420 एंड 426. ये तो हमें पता चल गया, क्वेश्चन फंसा रहा था, ट्रिक क्वेश्चन था. दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट 420 एंड 426. सो वी आर डाउन विथ 420 एंड 426. नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, how many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder one? Okay, आप कौन कौन से नंबर हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं टू गेट द सेम नंबर वन? ओके, सो जब ऐसी बात आती है, ओके, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब बेसिकली एच सी एफ पूछ रहा है. ओके, बेसिकली नॉट एग्जैक्टली एच सी एफ पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहे हैं जो सेम काम करेंगे. 420 और 426 दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों के कॉमन फैक्टर्स पूछ रहा है. 2 और 4, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा दोनों। इसके लिए आप एक काम करो, आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं. 420 का क्या होगा? 2 1, सॉरी, टू 2 1 0, 2 से फिर होगा आई थिंक 1 0 5, फिर 3 से होगा 3 1 5 इज 15, और फिर 5 से होगा 7 टाइम्स में. ओके, हमारे पास लिस्ट आ गई. ओके, 426 को कर लो. 2
2 1 3, ये 3 से हो पाएगा, 3 2 5 1, ठीक है, 3 3 7 3 21, 71, 71 होगा डिवाइड, जरा देखो। 71 प्राइम है क्या है, 91 प्राइम है, 9 9 81 प्राइम, सॉरी, 91 प्राइम नहीं है, 81 प्राइम नहीं है, तो 71 मोस्ट प्रोबेबली प्राइम ही है। कैन यू गेट कैन यू गेट द लॉजिक हियर? इसमें 420, अपन इसमें अपन HCF निकाले हैं ना। नहीं, नॉट एग्जैक्टली HCF। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। HCF मैंने, हाँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि HCF करना है हमें, एच नहीं करना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकालना है हमें, बस कॉमन फैक्टर्स निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है, दोनों को। ओके, और मैंने आपके सामने ये करके रखा, ठीक है। 426 का है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 71। अब आप मुझे बताओ, टू तो आपने भी बता दिया था, टू एक आंसर है डेफिनेटली, टू दोनों को करेगा, थ्री दोनों को करेगा, वी कैन क्लियरली सी, थ्री इसमें भी आ रहा है, हाँ। थ्री इसमें भी आ रहा है, तो थ्री भी करेगा। ओके, हम्म। अब थोड़ा सा सोचो, क्या डिविजिबिलिटी रूल में नहीं पढ़ा था हमने, अगर टू और थ्री करेगा तो सिक्स भी कर देगा? 6 भी कर देगा। वेरी गुड, सिक्स भी कर देगा। अब आप देखो, आप थोड़ा सा ऑप्शंस भी देखो, थोड़ा सा ऑप्शंस को देखो। तीन तो हमने ऐसे ही निकाल दिए, वन तो पक्का नहीं होगा, टू तो पक्का नहीं होगा, बचा 3 4, तीन तो हमने ऐसे ही निकाल दिए। ओके, अब और बताओ, वन नहीं होगा आंसर में, क्योंकि वन सबको डिवाइड करता है, तो वन कभी डिवाइड रिमाइंडर कर। नहीं छोड़ता है। हाँ, तो हाँ। वन नहीं होगा। कभी कभी लोग यही सोचते हैं कि नंबर सिस्टम में वन हमेशा आंसर में आएगा, ऐसा नहीं होगा। और सोचो, तीन तो हमने ऐसे ही निकाल दिए, 2 3 6, और कुछ मिल रहा है, और कुछ आ रहा है दिमाग में? कॉमन फैक्टराइजेशन में तो नहीं मिल रहा है कोई। कॉमन फैक्टराइजेशन में 2 2 मिला था, 3 3 मिला था। ओके, सो देर आर नो अदर फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। ओके, टू है, थ्री है, और टू थ्री यस। का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि 6। सिक्स सिक्स होगा। ओके, तो ये है, थोड़े से अब क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते जा रहे हैं। ओके, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, ओके। तो आपको उसी को माइंड में रखना है। अब जैसे आप देख रहे हो, ये सिक्स वाला, आपको नहीं लगता है सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल काफी रिपीट हो रहा है यूपीएससी में? यस। यस। हाँ, तो जब ऐसा हो रहा है तो उसे हम याद रखेंगे अच्छे से। पहले हमने क्या लेसन लिया, ये 25 प्राइम नंबर वाला फैक्ट हमेशा याद रखेंगे कि 1 से 100 वेट में। हाँ, टेल मी। वेट मेरे को एक चीज, भले तुम बोलोगे कि अभी ये तो बच्चों को तक आनी चाहिए, मेरे को ये नहीं आ रही है, ये जो तुमने करा है ना, वो 26 का फैक्टर, कॉमन फैक्टर, इसको एक बार फिर से बताओगे क्या? 426 का कॉमन फैक्टर। 426 और 420 का जैसे तुमने किया है ना अभी ये, हम्म। मेरे को एक बार इसका समझा दो। या कूल, नॉट एन इशू, मैं बताता हूँ आपको। मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं बताऊं कि अच्छे से आपको याद रहे। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक नंबर मैं को, भूल गई हूँ। मैं भूल गई हूँ, बस डिवाइड करते जाना है ना। हाँ हाँ, डिवाइड करते जाना है, लेकिन सिर्फ प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि ओके। फोर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, फोर से डिवाइड करने हम्म। की जगह टू से करो आप, थ्री से हम्म। करो, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज करते हैं। ये देखो, ये सारे प्राइम है, टू, यस। यस। 3। ठीक है, यस। 2 3 5 7, ये सारे प्राइम है, यस। तो इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करता है, हर आदमी का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। ओके, यस। जैसे अब आपका है, आपका एक यूनिक एड्रेस है, आपके जैसे एड्रेस में कोई दूसरा एस्पिरेंट शायद नहीं रह रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली, यस। ठीक है। रह भी रहा होगा तो भाई फ्लोर अलग होगा, रूम नंबर अलग होगा, ओके, मे बी बिल्डिंग यस। सेम हो। तो हर आदमी का जैसे यूनिक एड्रेस होता है, वैसे ही हर नंबर का एक यूनिक एड्रेस होता है। हम नंबर तक कैसे पहुंचे, उसका एक एड्रेस होता है। ओके, और वो एड्रेस होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, नो टू प्राइम फैक्टराइजेशन कैन एवर बी सेम,
ऑल राइट। Yes. कोई भी आप ले लो, मान लो 356 एक नंबर ले लिया, 356 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके देखो, फिर दुनिया में कोई भी दूसरा नंबर नहीं है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन सेम आए। Mm. आप समझ रहे हो? सो व्हाट Yes. इज प्राइम Yes. फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक एड्रेस। ऑल राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ Yes. यूनिक एड्रेस फॉर ईच नंबर। मैं थोड़ा सा इसको लिख भी देता हूँ। Mm. प्राइम फैक्टराइजेशन is a unique address for each number। ओके, और नंबर को Yes. मैं हल्का सा और स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, नेचुरल नंबर। ओके, क्यों मैंने Yes. नेचुरल नंबर बोला? इसके पीछे भी लॉजिक है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में जीरो भी आ जाता है। Mm. तो जीरो, जीरो का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ हो नहीं सकता है। इंटीजर्स ठीक है, इंटीजर्स वो नेगेटिव में हो जाते हैं, तो इंटीजर्स का भी प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जो नेचुरल नंबर का होगा वही इंटीजर का भी होगा। और उसके बाद वो फ्रैक्शन आ जाते हैं, डेसिमल आ जाते हैं, तो उतना हमें नहीं जाना है। हर नेचुरल नंबर का एक यूनिक एड्रेस आएगा जो प्राइम फैक्टराइजेशन से पता चलेगा। अब आप यहाँ देखो, मुझे 426 का हमें यूनिक एड्रेस पता है, और 420 का यूनिक एड्रेस पता है। ओके, Yes. अब इस यूनिक एड्रेस में देखो कॉमन क्या क्या है। क्या मैं कह सकता हूँ टू कॉमन है? Yes. टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है। तो Mm. जब कोई कोई टू कॉमन हो गया, तो वो कॉमन फैक्टर भी हो गया, Yes. क्योंकि टू दोनों को डिवाइड कर रहा है। वो तो ऐसे भी दिख रहा है, 426 टू इज डिवाइडिंग। थ्री यहाँ पे भी है, थ्री यहाँ पे भी है, तो थ्री भी एक तरीके से कॉमन फैक्टर हो Common. गया। हाँ, Yes. बस। तो यही चीज हमें देखनी थी कि कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। अब जैसे मैंने Mm. आपको एकदम कल वाला क्वेश्चन में ले चलता हूँ, 1155 वाला क्वेश्चन। ओके, अब इसमें हमने एक चीज देखी थी, हमारे पास चार ये थे, हमारे पास चार प्राइम फैक्टराइजेशन से चार नंबर थे। ओके, Mm. उसी चार नंबर से हमने कितने 16 निकाल लिए फैक्टर्स। Yes. हाँ, क्योंकि सिर्फ 3 5 7 11 का काम नहीं था, 3 into 5 भी एक फैक्टर निकलेगा, 3 into 7 भी एक फैक्टर निकलेगा, 3 into 11 भी एक फैक्टर निकलेगा। ये कल हमने देखा था, Mm. इफ यू Mm. रिमेम्बर। सो डिफरेंट Yes. डिफरेंट हम लोग वेज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब टू है और थ्री है, तो 2 into 3 भी होगा। Mm. टू है, थ्री है, तो 2 into 3 भी होगा, Yes. विच इज 6। ऐसे Six. मैंने और डिविजिबिलिटी फिर बोला है। हाँ, हाँ, और फिर डिविजिबिलिटी में टू और थ्री सिक्स का वो रहता है, तो फिर सिक्स भी आता है। हाँ, हाँ, तो आप या तो डिविजिबिलिटी से 6 पर आ जाओ, या फिर 2 3 है तो 2 into 3 भी होगा। तो ये सब जस्ट यस। कॉन्सेप्ट्स हैं। आप प्रैक्टिस करोगे, आपको और अच्छे से ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। प्रैक्टिस इसी से करनी होगी आपको, पीवाईक्यू से ही वो पता चलेगा कि पूछता क्या है। ओके। ओके। हाँ, ओके। ये ओके। मतलब मैं एक स्ट्रक्चर क्लास अभी नहीं ले सकता हूँ आपकी, जिसमें मैं एक एक हम्म। कॉन्सेप्ट को खोल खोल के बताऊं। लेकिन हम्म। हाँ, हम्म। पीवाईक्यू में जो कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं वो हम लोग जरूर डिस्कस कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, ये मैं पक्का आपको कह सकता हूँ। अभी आप देख रहे हो डिविजिबिलिटी और रूल ऑफ सिक्स कितना रिपीट हो रहा है। हम्म। ओके, एंड वी आर हाउ मेनी, वी आर ऑलमोस्ट एट हाफ ऑफ द पीडीएफ। ओके, आधा यस। पीडीएफ हमने अभी किया है, और आधा हम्म। पीडीएफ अभी हमने किया है, और आप देख सकते हो कि कितना रिपीट हो रहा है एक ही कॉन्सेप्ट। ओके, अब इसको एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर आज का रहने देते हैं। आई थिंक टाइम इज डन। ऑल राइट, सो अगेन देखना, इसमें कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होगा। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, ये इतना बड़ा ह्यूमंगस एकदम मॉन्स्ट्रस नंबर है, 91 से लेके 99 तक आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऑल राइट, इज डिवाइडेड बाय 61, 1261 सॉरी। ओके, तो इसके लिए आप क्या सोच रहे हो, क्या कैसे शुरुआत करें इस क्वेश्चन की? व्हाट अप्रोच शुड वी यूज? कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था आपने। एग्जैक्टली, अब याद करो कल वाले क्वेश्चन में कैसे किया था। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मॉन्स्टरस नंबर एक डीमन है, एक मॉन्स्टर है?
और इस मॉन्स्टर को मारने के लिए ये एक छोटू सा ये 1261 एक वॉरियर है। यस। और इस वॉरियर के हाथ में क्या था? गन था। गन में क्या थे? बुलेट्स थे। और वो बुलेट्स क्या थे? इसके प्राइम फैक्टर्स थे। तो यस। अभी चुपचाप हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 1261 का। और आप मुझे निकालने में हेल्प करो। सबसे ओके। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। टू। 2 इसको डिवाइड करेगा। यस। कैसे डिवाइड करेगा आप बताओ? 1261 को 2 कैसे डिवाइड करेगा? 1261 आपको नहीं लगता ऑड नंबर है? लास्ट में 1 आ रहा है। वन आ रहा है। तो 2 डिवाइड करेगा। नहीं। हाँ चलो अब 3 पे देखते हैं, 3 डिवाइड करेगा। थ्री थ्री भी नहीं करेगा। कूल। सेवन 5। करेगा सर। फाइव भी नहीं करेगा, सेवन करेगा। हाँ 7 बताओ करेगा क्या, एक बार देख के बताओ। माइंड में ही करो डिवाइड। हो रहा है 7। 7 12 को नहीं करेगा तो 7 1 जा नहीं 7, करेगा। 56। हम्म। 7 9 जा 50, 7 8 जा 56, 1 बच गया रिमाइंडर। ठीक है हम्म। 11 कर रहा है। 7 के बाद 11 आता है, 11 कर रहा है। 11 1 जा 11, बचा 1, 1 16। 11 1 जा 11 अगेन, बचा 5, 51। 51 है। फिर से 11 नहीं करेगा। क्या बचा? 13। 13 करके देख। 13 हाँ करो। नहीं करेगा, 13 भी नहीं करेगा। करो अच्छे से करो एक बार, चलो मैं करता हूँ 13 के साथ। 13 देखो, थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर सकते हैं। 126 दिख रहा है आपको? यस। तो जब 126 दिख रहा है तो 13 10 जा 130 होता है। और यस। 126 रहा है तो हम 13 9 जा हम्म। लेकर देखते हैं। 13 9 जा 9 3 जा 27, 2 9 1 जा 9 10 11, 117। अब करके देखो। 6 में से 7, 16 में से 7 करेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ 1 बोरो चला गया तो 11 11 कट गया, 1 आ गया। क्या आपको नहीं लगता है 13 7 सा 91 होगा? 7 3 यस। 91 हो गया। तो यस। 13 यस। डिवाइड करेगा कितने टाइम्स में? 97 टाइम्स में। 97। ओके, और 97 भी एक प्राइम नंबर है हमारा यहाँ पे। हम्म। ओके, सो 1261 इज नथिंग बट 1261 इज नथिंग बट 13 टाइम्स 97। ठीक है, 13 टाइम्स 97, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तुरंत हो गया। 1261 इज 13 टाइम्स 97। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? ये जो रिवॉल्वर थी इसके हाथ में, इस रिवॉल्वर में दो ही बुलेट्स हैं। इस रिवॉल्वर में दो ही बुलेट है। एक बुलेट है 13 और दूसरा बुलेट है 97। 97। अब अगर ये दोनों बुलेट्स इसको लग जाते हैं अच्छे से, अगर 13 और 97 ये दोनों हिट करते हैं मॉन्स्टर को अच्छे से, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ओके। हम्म। ठीक। अब देखो, हिट कर रहे हैं क्या 13 और 97? सबसे पहले तुमको नहीं लगता ये 97 विल हिट 97 स्ट्रेट अवे? यस। यस। 97 को तो ये तुरंत हिट कर दे रहा है, एक हम्म। बुलेट यूज हो गया। आपको नहीं लगता हम्म। है अभी 13 हमने देखा, 13 क्या था? 13 7 जा 91 था। सॉरी, हम्म। हाँ 13 7 जा 91। तो 13 भी 91 को हिट कर दिया, मतलब दोनों बुलेट लग गए मॉन्स्टर को। हाँ। दोनों बुलेट में ही काम हो गया, डिवाइड हो गया। और जब कोई भी चीज अच्छे से डिवाइड होती है तो कोई रिमाइंडर बचता है क्या? नहीं। कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया। बढ़िया। ओके। तो जब भी आपको हम्म। ऐसा लगे कि एक बड़ा सा नंबर है, अब देखो, ये तो कॉमन सेंस है, आप इसको करोगे क्या एग्जाम हॉल में? इतने बड़े नंबर को आप इवेलुएट करोगे क्या? पूरा सी सेट का एग्जाम खत्म हो जाएगा, ये नंबर नहीं निकलेगा। ओके। हम्म। तो ये नंबर को के साथ कुछ नहीं करना है। एक बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर है। बड़ा नंबर इज आर डीमन। ओके, बड़ा नंबर इज डीमन एंड छोटा नंबर इज वॉरियर। अब वॉरियर लड़ रहा है, गेम है, मोबाइल गेम है। वॉरियर लड़ रहा है डीमन से। ठीक है। वॉरियर के पास क्या टूल्स हैं? बुलेट्स हैं। व्हाट आर दोज बुलेट्स?
वॉरियर के ही प्राइम फैक्टराइजेशन है, वॉरियर का ही जो यूनिक एड्रेस है। ऑल राइट, तो वॉरियर यस का यस। यूनिक एड्रेस है। और जब हमने थोड़ा सा मेहनत की, क्योंकि नहीं हो रहा था, 5 से भी नहीं हुआ, 7 से भी नहीं हुआ, 11 से भी नहीं हुआ, 13 से हुआ, तो 13 टाइम्स 97 हुआ। 97 तो हम्म भाई सामने दिख रहा है, 97 तो ऐसे ही कट रहा है। 97 कट गया। और और 13 फिर 91 को काट दिया, दोनों हाँ बुलेट यूज ठीक हो है। गए, यानी कि डिवाइड हो गया। बस हो बात गया। खत्म। सो आज के लिए आई थिंक इतना ही। यस। चूंकि टाइम हो चुका है हमारा, आई थिंक मोर देन 1 आवर जैसा हो गया है, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो। हल्का सा मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन और लगेगा, बट यस टाइम लगे दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन समझना है। यस यस। कूल कूल। ओके मैंने, ओके। थैंक यू सो मच, आई थिंक। थैंक यू। वेट। या कूल। बाय बाय। बाय।